थर्ड क्वेश्चन बनाओ, फिगर बनाओ अपने आप पे। थर्ड क्वेश्चन फिगर बनाओ, मोहित करो। If tangents P and PB from a point P, tangents P and PB to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 60 degrees. Sorry, 80 degrees. POA. POA is equal to, this angle is equal. जल्दी बोलो क्या होगा? 150. Because these two triangles are congruent. If these two triangles are congruent, then by simplicity these two angles are equal. If these two angles are equal, then each would be 40 degree. 40 degree, and because this is 90 angle, using the angles and property of triangle, this angle would be 50. समझ में आ गया? मैं लिख नहीं हूँ, सबको समझ में आ गया सबको? Fourth question. Prove that the tangent drawn at the ends of diameter of circle are parallel to each other. This is the diameter. And these are the tangents XY and AB drawn at the endpoints of diameter of circle. You have to show that these two tangents are parallel to each other. कैसे करेंगे? गिवन क्या है इसमें? XY and AB are tangents at the endpoints P and Q of diameter AB, PQ. Show that क्या है? Show that क्या है बच्चों? AB is parallel to XY. AB is parallel to XY. Is there any construction needed in this? नहीं ना? तो बच्चों प्रूफ का पार्ट जल्दी से बोलो, क्या करोगे? हाँ, लिखेंगे एंगल BPO is equal to angle YQO is equal to 90 degrees. क्यों? Angle between radius and tangent at the point of contact. This implies angle BPO plus angle OQY is equal to 90 plus 90, 180. Implies PQ is the transversal for two parallel lines AB and XY as sum of co-interior angles is 180 degrees.
समझ में आ गया? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180। बिल्कुल क्लियर है सबको? सिंपल सा लॉजिक था बिल्कुल। आ गया सबको समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। This was question number 4. Now fifth question. Fifth question is prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through center. This is a circle with center O. Let AB is tangent which touches the circle at point P. Now we are drawing perpendicular on this line. Let us suppose perpendicular is PO dash. You have to show that this perpendicular passes through O. ये प्रूफ करना है तो कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे। समझ में आ गया होगा सबको? गिवन क्या है जल्दी बोलो। गिवन क्या है बच्चों? सर्कल विद सेंटर O। दूसरी बात क्या गिवन है? AB is the tangent to the circle which touches the circle at P. समझ में आ गया? टू प्रूव क्या है जल्दी बोलो। टू प्रूव perpendicular at P passes through the point O. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है ना? ऐसे ही लिखो, बोलो। क्या करेंगे जल्दी बोलो। let O dash P be the perpendicular at P, perpendicular to tangent AB at, ठीक है? सबको समझ में आ गया? अब इसके बाद इसका मतलब परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल O dash PB is equal to 90 degree. क्यों? बिकॉज है ही परपेंडिकुलर, हमने ड्रॉ ही परपेंडिकुलर किया। समझ में आ गया? O dash P कैसे भाई आप क्या लिखे इसमें? अच्छा हमने ऊपर लिख ही दिया O dash P परपेंडिकुलर है तो O dash ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। बट एंगल OPB ये भी कितना होगा? क्यों होगा? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी बोलो। इसका मतलब OP coincide with
O dash P. ये दोनों लाइंस कोइंसाइड करेंगी, ये दोनों लाइंस कोइंसाइड करेंगी. OP coincides with O dash P implies perpendicular O dash P passes through the center of circle. बस समझ में आ गया, बड़ा सिंपल. ये बच्चों मैंने ना, मैं रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर रही हूँ, जब भी रिवीजन करना हो तो बस लिंक खोल लें. लेकिन खुलने का मतलब ये नहीं बस खोल करके 90% बच्चे क्या करते हैं, वीडियो सुन लेते हैं, यूट्यूब से भी सुन लेते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं, खत्म हो जाती है. उसके बाद आपको क्या करना होता है, एक बार पूरी एक्सरसाइज करनी होती है. समझ में आ गया? तो वो करनी है लिख करके, जिससे रिवीजन पूरा हो जाए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. शुरू हो जाओ, बनाओ फिगर. फिगर इज नॉट गिवन. बच्चों बनाओ फिगर, आपको अपने आप ही बनानी. The length of tangent from point A. This is point A. The length of tangent from point A at a distance 5 centimeter from the center of circle. At a distance 5 centimeter from the center of circle is 4 centimeter. Find the radius of circle. Pythagorean triplet है, सबको दिख ही रहा है, 3 सेंटीमीटर होगा. ये मोहित बंद करो उसे कटिंग को, जल्दी बंद करो, सबकी नजरें बाहर ही है. नहीं है तो बिल्कुल शांति से बैठो फिर. ठीक है. 7th क्वेश्चन. 6 का यहाँ पे जो रेडियस कितनी होगी 3, मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं. 7th question. Two concentric circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Two concentric circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter. ये दो concentric circles हैं. थोड़ा बड़ा बना लेते हैं कभी तो. Find the length of chord of larger circle which touches the smaller circle. बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर. आई थिंक दिस इज द रेडियस ऑफ a smaller circle, so this would be 3 centimeter, and this line is radius for a smaller circle. बच्चों ध्यान दो, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री. This is center O, this is the chord AB for larger circle, but tangent for smaller circle. So ये point हम क्या ले लें C. C is the point of contact. If we join O to C, then OC will become the radius of a smaller circle. OC is the radius of a smaller circle. बच्चों सबको समझ में आ रहा है? And because this is the angle between tangent and radius, implies this would be 90 degree. Again use Pythagorean triplet. So this would be 4 centimeter. And we know that perpendicular from center of circle bisects the chord. So the total length of this chord would be 8 centimeters. मुझे लिखने की तो जरूरत नहीं है, ये तो फाइंड करने वाला है, प्रूव करने वाला है नहीं. कर लोगे सब लोग? आ गया नाम मनन?
कौन सा वाला? 8 4 आ गया, 4 आ गया, नहीं आया, फिर से देखो, ये रेडियस बन गई और ये टेंजेंट बन गई. So this is equal to 90 degree because this is the angle between radius and tangent at the point of contact. If this is 90, this is 3 centimeter, this is 5 centimeter. Fourth side, third side कितनी होगी? 4 centimeter because of Pythagorean treatment. मैथ्स आ गया ना बेटा? सबको आ गया? अद्विका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपल सिंपल क्वेश्चन है. सर्कल्स तो बहुत ही छोटा सा है, बस एक ही एक्सरसाइज है जो करनी है हमें. यही ठीक है, जल्दी से कर दो. आज खत्म कर दे सारी एक्सरसाइज. 8 क्वेश्चन देखो, इसका रिजल्ट याद रखना है. 8 क्वेश्चन ये थ्योरम्स फॉर्म में यूज होता है. क्या है क्वेश्चन? A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that. देखो ध्यान दो क्या है. This is a circle and A, B, C, D is a quadrilateral which is circumscribing the circle, right? अब मैं जो आपको प्रूफ जो करना है, टू प्रूव है इसमें. Sum of opposite sides means AB plus CD is equal to AD plus BC. ये रिजल्ट याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है. ऑपोजिट साइड्स का सम कैसा होता है? इक्वल. ऑपोजिट साइड्स का सम कैसा होता है? इक्वल. बच्चों इन पॉइंट्स को कुछ मार्क कर लो. इसको लिख लेते हैं P Q R S. P Q and R S. बच्चों प्रूफ बोलो क्या? हाँ ध्यान दो, यही की लेफ्ट हैंड साइड उठा लो. ठीक, तो मैंने क्या लिया? AB प्लस CB इज इक्वल. AB को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो. AB के दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे? AQ प्लस QB. AQ प्लस QB. CD के दो पार्ट्स देखो कौन से हैं? CD के दो पार्ट्स कौन से हैं बच्चों? CS एंड DS. सब बच्चों ठीक. अब देखो AQ किसके इक्वल है? This is the tangent from external point and both the tangents from external point are equal. So AQ is equal to AP. A is the external point now and AQ and AP are tangents from this external point A. So these two tangents are equal. So AQ is equal to AP. लिख दें AQ को AP. BQ किसके इक्वल? QR. Sorry, BR. Similarly, CS is equal to CR and DS is equal to DP. रीजन लिख दो. क्या रीजन है? रीजन लिखो जल्दी से. बेटा पूरा ही लिखना पड़ेगा पहले. AQ is equal to AP, QB is equal to BR, CS is equal to CR and DS is equal to DP. क्या? Tangents from external point are equal. Tangents from external point are equal. समझ में आ गया? अब क्लब कर दो. देखो AP और DP को क्लब कर दो. AP
प्लस डीपी और बीआर प्लस सीआर। बोलो कितना हो गया? एपी कितना हो गया? एपी प्लस डीपी, एपी प्लस डीपी एडी, और बीआर प्लस सीआर कितना हो गया? बीसी, which is equal to required right hand side. Yes, proved. कितना सिंपल है रिजल्ट याद रखना। आने स्टैटिस्टिक्स समझ में आई बेटे स्कूल में? आज स्टार्ट हुई थी, फिर सर एपी कराया एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराते हैं तो आप लोग को समझ में आते हैं पहले से? ये तो नहीं होता कि मतलब 10 में से 9 क्वेश्चंस होते हैं? हाँ, सारे हो गए। सारे हो गए? ये वेरी गुड, बहुत अच्छी। हर पॉइंट पे अपने आप को स्कूल में भी चेक करते रहो कि आप क्लास से आगे रहने चाहिए। हाँ, बेटा आपने वो थ्योरम नहीं करी है। एक हमने थ्योरम पढ़ी थी कि ये एक सिंगल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट्स हैं AP एंड AQ, एंड दिस ये थ्योरम का स्टेटमेंट है डिमेंशन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। उसे प्रूफ कैसे किया था? इसको इससे ज्वाइन किया, सेंटर को इसको इससे ज्वाइन किया और इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। कॉन्ग्रुएंट कैसे किया? बिकॉज़ ये एंगल 90 डिग्री, ये रेडियस और ये कॉन्ग्रुएंट, तो RHS से दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये साइड से। ये थ्योरम का पार्ट क्लियर। सो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है। 9th क्वेश्चन, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये विदाउट फिगर आता है तो फिगर क्वेश्चन से पढ़ के बनाओ। इसमें तो गिवन है फिगर, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन विदाउट फिगर देते हैं, तो इसलिए बच्चों विदाउट फिगर सबको बनाना आना चाहिए। पढ़ो क्वेश्चन और बनाओ। फिगर मान लो गिवन नहीं है। xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O. बनाओ अपने आप। एक सर्कल बनाया, सेंटर O, two parallel tangents. This is suppose xy and this is suppose x dash y dash are two parallel tangents, circle with center O. फिर क्या है? And another tangent AB with point of contact C, with the point of contact C intersecting xy. एक और टेंजेंट लेनी है इसी सर्कल की, तो मैं कैसे ले रही हूँ? देखो ऐसे ले रही हूँ, with point of contact C, with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that AOB is equal to 90 degree. फिगर समझ में आ गई बच्चों? क्वेश्चन पढ़ के भी बनाई जा सकती है। सबको समझ में आया? हमें ये 90 डिग्री प्रूव करना। तो क्या गिवन है? पहले तो गिवन वाली बातें बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सर्कल। हाँ बोलो। सर्कल सेंटर, सबसे पहले तो सर्कल विद सेंटर को, विद सेंटर। सेकंड x y and x dash y dash are tangents parallel to each other. Tangents parallel to each other. ठीक, और क्या गिवन है? थर्ड, AB is the tangent to the circle, touching the circle at C. समझ में आ गया? बस यही है गिवन। अब
टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ क्या है? Angle AOB. AOB is equal to 90. हाँ बच्चों, शुरू करें। तो प्रूफ में पहला स्टेप क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये वाले मार्क कर लो। इनको क्या मार्क कर ले? पी और क्यू। इनको क्या मार्क कर लो? पी और क्यू। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन ही करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OP, OQ and OC. OQ, OP and OC. अभी तक क्या समझ में गया मुझे बोलो? सबको आया बेटा? अब प्रूफ क्या करना है? जल्दी से स्टेप सोचो। 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए क्या करना है? Triangles को combine proof करना. कौन से ट्रायंगल्स को? OPB and OQA. OQB, OP भी बोल रहे हो आप? और OQA. वो होंगे ही नहीं कौन? OAC और OCB. OAC और OC नहीं बेटा। कॉन्ग्रुएंट वाले सेट्स तो दिख रहे हैं जो आपने थ्योरम के पार्ट किए थे। OPB और O, ये तो बोल रहे हैं. AOC और CO। आप घूम फिर के वही बोल रहे हो। सुनो पहली बात, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी किस में लगाओ? लगाओ जरा। AOC AOB नहीं जी, नहीं नहीं, और बोलो। हेलो, हाँ हाँ। अभी मैं क्लास में हूँ, मुझे मैसेज कर दिया, मुझे मैसेज कर दिया। हाँ भाई, तो वो भी बोलने हैं, कुछ अलग बोलो बच्चों, कुछ तो अच्छा ट्राई करो। AB square equals OA square plus OB square. AB स्क्वायर इक्वल्स, अरे वो प्रूव करना है 90 डिग्री, है नहीं प्रूव करना है बच्चों। तुम लोग की तो पकड़ के पिटाई करनी चाहिए। क्या करें बताओ जल्दी से, आज तुम ही लोग बताओ। QOA हाँ, ये हमें पता ही था। ये ट्रायंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट होते ही है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से जो तो दो ट्रायंगल्स बनते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट होते ही हैं। अभी बताया था ना, टेंजेंट्स वाले दो ट्रायंगल्स जो बनते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस, ये कॉमन, और एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट 90 डिग्री होते हैं ना कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अभी लिखना नहीं, रुक जाओ सब बच्चों, बस मुझे मार्क करने दो। सबको समझ में आया? सिमिलरली these two triangles are also congruent. So this angle is equal to this angle. ठीक, अगर ये मैं पूरा 180 डिग्री कर दूं, 45 degree, 45 degree.
मैंने ये नहीं बोला कि ये 90 है, 45 नहीं बोलो, क्या बोलोगे, ये एंगल 1 ये 1, ये 2 ये 2, तो 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 180। इसका मतलब 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, मैंने ईच 145 डिग्री नहीं बोला। सबको समझ में आ रहा है? लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टोटल वाला कितना प्रूफ करना पड़ेगा पहले, क्योंकि मैंने तो सिर्फ ज्वाइन किया है, ये तो नहीं कहीं लिखा कि ये स्ट्रेट लाइन। भाई ज्वाइन तो ऐसे भी हो सकते हैं ना, ये एक लाइन ये एक लाइन, और मैंने हाँ हमें बताना पड़ेगा। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि because these two tangents are parallel to each other, so this is a transversal. Transversal and transversal is a straight line, so this whole angle is equal to 180 degree. दिख रहा है आपको डायग्राम? गिवन कहाँ है? गिवन है क्या, बताओ पहले। मैंने सेंटर वो गिवन था, मैंने पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया, डायमीटर तो अपने आप आपको दिख रहा है बेटा। मैं ऐसे भी तो ज्वाइन कर सकती थी, ये देखें, ये तो डायमीटर नहीं दिख रहा, मैंने फिगर थोड़ी ज्यादा अच्छी बनाई है, डायमीटर दिख रहा है जो। समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि टेंजेंट्स ऐसी हैं, पैरेलल है इसलिए वो डाया बन गया। अगर पैरेलल नहीं होती तो ये डाया नहीं बनता। बात समझ में आ गई? तो हमें ये बात लिखनी पड़ेगी ना कि ये डायमीटर क्यों बना, क्योंकि टेंजेंट्स पैरेलल थे। तो चलो पहले यही बात लिखें, चलो लिखना शुरू करो। पहली बात क्या लिखने जा रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के लिए अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, बिल्कुल ऐसे ही क्या लिखेंगे, these are parallel tangents xy and x dash y dash are parallel tangents. And angle OQA is equal to angle कौन सा वाला, OQA OPB, दोनों कितने हैं 90 डिग्रीज। क्यों, रीजन लिख दो, क्या लिखोगे रीजन? अरे ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री है बच्चों, मेरा फेस नहीं देखना है। एंगल बिटवीन रेडियस एंड ट्रायंगल, जल्दी लिखो, रेडियस एंड ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल OQA प्लस एंगल OQPB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसका मतलब सम ऑफ co-interior angles is 180 implies PQ is a straight line. PQ क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन। सबको समझ में आ गई बात? समझ में आ गई पूरी बात? पहला स्टेप क्या किया, अब इसको 180 डिग्री प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे लिख के छोड़ दो, इसका मतलब एंगल QOP इज इक्वल टू 180। ये स्टेटमेंट छोड़ दिया। जब भी हम थ्योरम लिखते हैं बच्चों, कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स हर जगह, देखो मैंने इसके साथ एंड से कनेक्ट किया, फिर इम्प्लाइज से कनेक्ट किया, फिर इम्प्लाइज से कनेक्ट किया, फिर इम्प्लाइज से किया, फिर इम्प्लाइज से किया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में दोबारा से लिखने जा रही हूँ नया, जो कि इससे कनेक्शन नहीं रखता है, तो मैं कैसे लिखूंगी, अगेन या नाउ। समझ में आ गया? कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स हमेशा साथ में छोड़ो। अब यहाँ पे नाउ सूट कर रहा है, अगेन सूट नहीं कर रहा। समझ में आ गया? नाउ क्या, नाउ ट्रायंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। ठीक, कौन सा ट्रायंगल, मैं डायरेक्ट लिख दूं? अरे ये लड़की,
चलो लिखो इन ट्राइंगल OQA एंड ट्राइंगल OCA, बताना तीन चीजें ढूंढना, जरा आप ही ढूंढो। कॉन्ग्रुएंट होंगे ये मैं बता रही हूँ, अब आप ढूंढो इसमें तीन चीजें। OA कॉमन, OA is equal to OA common. और Angle OQA is equal to angle OCA. अब मैं यहाँ पे रीजन नहीं लिखूंगी, each 90 लिख देंगे बस। आप ही ने ढूंढ दिए तीन चीजें। रेडियन implies triangle OQA is congruent to triangle OCA by congruent हो गए। कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या हुआ, एंगल QOA is equal to angle COA by CPC। ठीक, सिमिलरली देखो सारे स्टेटमेंट्स कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। अब मैं लिखूंगी सिमिलरली, सिमिलरली कौन से एंगल्स, ये वाले दोनों, इसको इक्वल्स टू 1 से ऐसे लिखते हैं। हमें इतने बड़े बड़े एंगल्स नहीं लिखने, समझ में आ गया। सिमिलरली एंगल कौन सा लिखूंगी, POB is equal to angle COB because triangle 2 is equal to, अब उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके लिख सकते हैं। ठीक, again from equation 1, QOP is equal to 90 degree implies, ये पूरा एंगल 180 डिग्री 90 डिग्री लिख दिया मैंने, 180 डिग्री, ये वाला 180 डिग्री है ना। अब इसे कैसे लिखोगे, implies angle 2 times angle 1 plus 2 times angle 2 is equal to 180, इन दोनों को सीधे लिख दो 2, and from 2 implies 2 times angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree. So angle 1 plus angle 2 is equal to 90 degree, and 1 plus 2 is angle AOB. पूरा समझ में आया। तो इसके स्टेप्स याद करो जल्दी से, क्या स्टेप्स हैं, पहले क्या प्रूफ करना है, पहले ये पूरा 180 प्रूफ करना है। पहला स्टेप ये है कि इसको 180 डिग्री प्रूफ करना है। 180 डिग्री प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस ट्रांसवर्सल शो करना, ट्रांसवर्सल शो करनी है, मतलब को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना करना है, 180 डिग्री। ठीक, अब ये 180 डिग्री करते ही हमें ये पार्ट्स करने हैं, तो पार्ट्स करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी करनी पड़ेगी, तो 1 1 के इक्वल टू 2 के इक्वल, फिर ये पार्ट्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, फिर डिवाइड होकर के 1 + 2 आ जाएगा। सबको आ गया समझ में, पूरा याद हो गया पूरा प्रूफ। चलो नेक्स्ट, लिखते भी जा रहे हो साथ साथ। ठीक, 9th क्वेश्चन, 9 हो गया, 9 हो गया, अरे वाह, 10th पे हाँ चलो 10, हाँ
बच्चों पढ़ाई को एंजॉय किया करो, मॉडर्न नहीं है पढ़ाई। 10th question, prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact। इतनी बड़ी थ्योरी लिख दी, चलो फिर से सॉल्व कर, फिगर बनाना शुरू करते हैं। सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर्कल सबसे पहले बताते हैं, ठीक है। अब एक एक लाइन धीरे धीरे पढ़ते हैं। Prove that the angle between two tangents drawn from an external point, two tangents drawn from an external point, two tangents drawn from an external point, angle between, इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यही है ना, इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला होगा। देखो मैं समझना सिखा रही हूँ बच्चों सबको कि कैसे लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं फिगर में। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो एंगल मैंने मार्क कर दिया साथ में, ये वाला एंगल, ठीक। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फिर आगे क्या है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज, अब इसके बाद वाला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल, कौन सा एंगल ध्यान से देखना, टू द एंगल subtended by the line segment joining the points of contact, joining the points of contact, ये वाली जो line segment at the center of circle। मामा क्वाड्रिलेटरल वाले से जा रहे हो, लेकिन बेटा उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज को कन्वर्ट कर पाए। सबको समझ में आ गया कि इन दोनों को हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करना है, यानी इनका सम कितना करना है, और हमें थ्योरम पता है, बिल्कुल आराम से हम कर सकते हैं, बस हमें ये पता चलना चाहिए कि ये बोल क्या रहा है। समझ में आ गया, तो आप इसकी तो पकड़ के पिटाई करो, 90 डिग्री कैसे होगा, उस फ्रेम जब सेंटर पे बनता है फिर वो होता है ना साहब, मतलब क्या याद दिला, 9 की थ्योरम बोल रहा हूँ, ये सेंटर है, ये कॉर्ड, ये कितना भी एंगल बना सकते, जरूरी नहीं है 90 डिग्री, लेकिन ये वाले एंगल का ये डबल होता है, ये जो एंगल है इसका डबल। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे ये सेगमेंट पे कोई एंगल नहीं बनता, ये तो बाहर बना है, तो ये वाली बात से इसका कोई मतलब ही नहीं। अब उससे कंफ्यूज हो जाए, समझ में आ गया, रब कर दिया। अब देखो ध्यान से, कोई 90 डिग्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 90 डिग्री सिर्फ कहाँ पे होगा, क्योंकि ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो जब भी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट की बात हो हमेशा रेडियस और टेंजेंट को ढूंढ लो। हमेशा किसको ढूंढना है, रेडियस और टेंजेंट। तो रेडियस देखो कौन सी लाइन है, अगर मैं इसको ओ लिख दूं, ओ ए एंड ए, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है आज। और कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, जल्दी बताओ। डी पे कौन सा बनाऊं, ये बनाऊं, ये बनाऊं, ये बनाऊं, कौन सा बनाऊं, नाम दो। हाँ आप, ये 90 डिग्री होगा, सबको समझ में आ गया। तो आपको सबको समझ में आई गया कि ये बचे हुए दो एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री तो होंगे, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मुझे लिखने की जरूरत है क्या इस क्वेश्चन को, नहीं ना, चलो 11th क्वेश्चन पे आ जाए, टाइम बचा है अपना, एक्सरसाइज कंप्लीट करें आज। Prove that the parallelogram circumscribing circle is a rhombus। फिगर बनाओ जरा, मैं इस क्वेश्चन को देख करके समझना चाहती हूँ आप लोग क्या कर रहे हो। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर से कवर, इंस्क्राइब मतलब अंदर से कवर। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब, बेटा सर्कमस्क्राइब सारी साइड्स टच करेगी। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब पूरा वो कैसे पता, मैम ये भी 8th क्वेश्चन इसलिए होगा ना, यस, इसलिए मैंने कहा था वो स्टेटमेंट याद रखना।
अब यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे। देखो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका एक सर्कल बनाओ सुंदर सा, ठीक। अब पैरेलल लाइंस बनाओ, दो तो पैरेलल बना ही लोगे। अब आपको बची हुई दो भी पैरेलल बनानी है, तो एक पैरेलल और दूसरी पैरेलल। क्या सुंदर बना हुआ है। मेरे पास सॉल्यूशन है इसका, ये ठीक है। मैं रबी नहीं कर रही, यहां से कर रही। तो इसको लिख लेते हैं PQRS। तो इसको ऐसे पढ़ दिया। नहीं, मुझे बिल्कुल स्क्वायर नहीं दिख रहा बुद्धू, मेरे फिगर को गंदा बता रहे हैं, देखना ये 90 डिग्री दिख रहा है, स्क्वायर बिल्कुल नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? हाँ, कुछ तो दिख रहा है। चलो मैं दोबारा से बताती हूँ। अब नहीं दिख रहा। अब तो नहीं दिख रहा। ठीक है, पैरेललोग्राम लिखा है। चलो अब इसको क्या प्रूफ करना है? इसको क्या प्रूफ करना है? गिवन क्या है? पैरेलल। सर्कमस्क्राइब किसको कर रहा है? सर्कल। ठीक, दो बातें गिवन है। क्या गिवन है? कि है क्या? पैरेललोग्राम। और किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है? सर्कल। तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट मेंशन करो, ए बी सी। कल टेस्ट बढ़िया देना बच्चों, मैंने एनसीईआरटी तो नहीं बोला ना? नहीं, बहुत सही किया। चलो आगे चलो। अब ये बताओ कि कैसे करें इसे, सोचो। एक्सटर्नल पॉइंट वाली लाइंस सारी। अभी मैंने एक वो बताया था, सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल हमेशा एक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। 8th क्वेश्चन अभी याद करवाया था सबको कि जो भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है उसकी ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। बताया था ना अभी, ऑपोजिट साइड्स का सम कैसा होगा? इक्वल होगा, बताया था। हाँ, तो ए बी नहीं पी क्यू आर प्रूफ कर रही हूँ बच्चों, मैं गिवन टू प्रूफ नहीं लिख रही, सबको समझ में आएगी। इक्वल हो गया, आपको भी खुद ही समझ में आ गया, आपने आगे का सोच लिया। शाबाश। चलो, PQRS is a parallelogram circumscribing the circle implies PQ plus SR is equal to PS plus QR। अगर यही 5 मार्कर आया ना बच्चों, तो ये प्रूफ कर दोगे ना 8th क्वेश्चन ही। समझ में आ गया? मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख। सो दिस implies, अब बच्चों ध्यान देना, ये तो मैंने लिख दिया। अब PQ और SR को देखो, PQ और SR तो इक्वल है because these are the sides of these are opposite sides of parallel। तो PQ और SR की जगह दोनों को मैं PQ लिख सकती हूँ। This implies 2PQ is equal to 2PS because PQ is equal to SR and PS is equal to QR। इसका भी रीजन लिख दो, as opposite sides of parallelogram। opposite sides of parallelogram, सबको समझ में आ गया? This implies 2 cancel, PQ is equal to, देखो ये क्या एडजेसेंट साइड्स है, PQ is equal to PS कर दिया हमने। Now adjacent sides of parallelogram are equal। If adjacent sides of parallelogram are equal, then parallelogram is a rhombus। बेटा पैरेललोग्राम है ना, तो रोम्बस में कन्वर्ट होगा। रेक्टेंगल होगा तो स्क्वायर। कि 90 डिग्री नहीं पता ना, वो उसका पर्टिकुलर केस है। So this implies adjacent sides of parallelogram are equal, implies parallelogram
PQRS is a PQSR की संख्या का PQSR के इक्वल इसलिए था क्योंकि ये पैरेलल हो गया है और उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मैं ये कह रही हूँ दोनों इक्वल, ये दोनों भी इक्वल है। पैरेललोग्राम की कोई भी पैरेललोग्राम बनाओ, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है जल्दी बताओ। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल होती है ना ऑपोजिट साइड्स, तो PQ और SR ऑपोजिट साइड्स नहीं है क्या? ये दोनों इक्वल है, ये तो थ्योरम से लिखा हमने, 8th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन ये प्रूफ किया था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है उसकी ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा। सो पैरेललोग्राम इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटरल ना। 8th क्वेश्चन देखो, पढ़ो 8th क्वेश्चन, यही प्रूफ किया था। बुक में देखो, बुक में आई बात समझ में? सब बच्चों आ गई? चलो स्क्वायर भी कुछ कर सकते हैं। अरे जब ये रेक्टेंगल होगा तभी वो स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर अटक जाती है वहीं पे, घूम करके वहीं पे आती है। स्क्वायर कैसे शुरू करोगे? 90 डिग्री है, तब भी नहीं कर सकते। जब तक ये 90 डिग्री गिवन नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। Twelfth question, most important question, 5 marker question. हर बार जब ये चैप्टर होगा या कुछ भी होगा तो आप लोग मुझसे ये कहोगे कि मैम बस वो 12th क्वेश्चन करा, ये वही क्वेश्चन समझ में आ गया तो आज ध्यान से कर, जिससे ये कहना ना, ठीक है? ये वही क्वेश्चन 12th क्वेश्चन, जहां नहीं है 3 बार पूछ। देखो फिगर बना रहे हैं हम इससे नहीं बना रहे, पढ़ के बना रहे, ठीक? A triangle ABC is drawn to circumscribe a triangle, a circle. To circumscribe a circle. जब भी ट्रायंगल की बात बोले तो हमेशा कभी भी इक्विलेटरल नहीं बनाना है। कैसा बनाना है? स्केलिंग, मतलब जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। देखो बिल्कुल मेरा इक्विलेटरल तो नहीं लग रहा, सबको समझ में आ गया? देखो आपका लग रहा है ना। जब तक इक्विलेटरल या पर्टिकुलर केसेस बोले ना तब तक आपके दिखने भी नहीं चाहिए। सबको समझ में आ गया? तो ABC is a triangle circumscribing circle of radius 4. Radius 4 cm, such that the segment BD, this point is segment BD and DC, into which BC is divided by the point of contact D, are of length 8 centimeter and 6 centimeters. ठीक है? Find AB and AC. %90 क्वेश्चंस जो आते हैं इसके वो कैसे आते हैं कि because ये 8 है and this is the tangent from external point, so this would be also 8 और ये वाला भी कितना होगा? 6। बस ये पार्ट बच गया।
तो इस पार्ट में एक कंसिडर करो कितना x, तो दूसरा भी कितना होगा बिकॉज अगेन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. ठीक है. क्लियरली एक छोटा है. मुझे पता था आप बोलोगे और आपने सही क्या बोला, लेकिन मुझे पता नहीं था ना कि ऐसा कुछ बोलेगा वो 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर. ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, उससे वो मैटर नहीं करता. लेकिन तब भी आप इक्विलेटरल कभी मत बनाना, दोनों बातें अलग है. सबको समझ में आ गई बात ये? हाँ. अब देखो 90% क्वेश्चंस में ये 90 डिग्री दिया होता है, तो एक साइड क्या बन जाती है हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज बनते ही निकल जाता है, एक्स की वैल्यू यहीं से निकल जाती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता. लेकिन इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई एंगल नहीं पता. हमें सिर्फ क्या पता है, रेडियस. रेडियस के लिए अब हम क्या करेंगे, इसे 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे. आपका दिमाग बहुत तेज चलता है. हाँ चलो, समझ में आया ये. तो ये जो है खुराफाती दिमाग है इसका, अभी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है. चलो 3 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गया. इसको मैंने ओ लिख दिया. एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल. 3 ट्रायंगल्स हो गए. ठीक. इन तीनों ट्रायंगल्स के एरियाज का सम इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. क्या इस ट्रायंगल का एरिया बता सकते हो कितना होगा? हाफ बेस इनटू हाइट. ये हाइट में ही तो कन्वर्ट हो गया. बेस ये है, हाइट ये है. बेस ये है, हाइट ये है. बेस ये है, हाइट ये है. तीनों ट्रायंगल्स का एरिया आ जाएगा. और किसके इक्वल होगा? इस होल ट्रायंगल के एरिया. तो सबसे पहले हम क्या निकालें? इसका एरिया. एरिया जब एंगल गिवन नहीं है तो हम कैसे निकालते हैं मोहित? साइड्स इन्वॉल्व है अगर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे 9th में? हेरॉन्स फॉर्मूला. तो उसके लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? एस. एस सम ऑफ साइड्स. पहली साइड बोलो कितनी है? BC प्लस AC प्लस AB. सेमी पेरीमीटर होता है ना ये. S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर. BC कितना है जल्दी बोलो? 14. AC कितना है? 6 प्लस x. AB कितना है? 8 plus x upon 2. So this is 28 plus 2x upon 2 is 14 plus x. आ गया सेमी पेरीमीटर. हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता था? एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to root S minus A, S minus B, S minus C. याद आ गया सबको? S को हमने निकाल लिया कितना? 14 plus x. S minus A. A का मतलब क्या? ये वाली साइड. एक एक करके साइड्स पुट करनी है बिकॉज ये ABC ही तो है. तो this minus 14. 14 plus x minus 14. 14 plus x minus b, ये वाला. 6 minus x. 14 plus x minus 8 minus x. Fourteen plus x. 14 cancel x. X cancel. 14 minus 6 कितना? 8. X cancel. 14 minus 8 कितना? 6. एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया. Now, area of triangle ABC is equal to area of triangle OBC plus
area of triangle OAC plus area of triangle OAB. So root of, देखो मैंने इसे सिंप्लीफाई नहीं किया है, x इंटू 8 इंटू 6 ऐसे ही छोड़, दिस इज इक्वल टू हाफ, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस कितना है इसका 14 इंटू 4 प्लस हाफ 6 प्लस x इंटू 4 प्लस हाफ 8 प्लस x इंटू ये 2 तो कॉमन आ गया, 2 तो कॉमन आ गया, बचा कितना 14 प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x 2 टाइम्स 28 प्लस 2x, 2 कॉमन ले तो 4 टाइम्स 14 प्लस x। अब लेफ्ट हैंड साइड भी लिख दो 14 प्लस x, x इंटू 8 इंटू 6। सिंप्लीफाई करना है, क्या करें स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कर दो तो 14 प्लस x 8 6 48x is equal to 4 4 16 14 plus x whole square, 8 14 plus x 8 14 plus x से कैंसिल, ठीक 16 3 48, so 3x is equal to 14 plus x, 2x is equal to 14, x is equal to 7. So AB is equal to 8 plus 7, which is equal to 15 centimeters, and AC is equal to 6 plus 7, which is equal to 13. आ गया सबको समझ में? बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा समझ में, 2-3 बार लिख करके कर। हो गया, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन आज कंप्लीट कर देते हैं एक्सरसाइज, अभी है 10 मिनट। 13 क्वेश्चन डाउट्स तो बता कार्बन के आप वो जैसे एक क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है तो इसमें अंदर बहुत नॉलेज है वो है कि जल्दी करने आंसर होता है इसी में ये कौन सा है आगे वाला ये जीटी का पार्ट है नहीं 30 है का आंसर सही है ये वाला कर दिए उसके सामने से कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, कल वो आई थी, एक भी नहीं बोला चाहिए इसका मतलब बहुत नाम क्या है इसका
अनमोल की कॉपी कहाँ रखी? नहीं नहीं, ये नहीं। कॉपीज मिक्स हो जाती है। क्यों हंसे? चलो, लास्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, prove that opposite sides of quadrilateral circumscribe। बच्चों इसे फिगर आउट करो जब अपने आप, बताओ क्या प्रूव करना है। पढ़ो लैंग्वेज को धीरे धीरे करके। बिना डिस्कशन के। कितने बच्चे सही जगह पे पहुंचते हैं, मैं मुझे देखना है। लैंग्वेज पढ़ के कन्वर्ट कर पाते हैं कि सारे तो ऑनलाइन है आज, उनको कैसे देखूं पता नहीं। क्या बात है बच्चों, कुछ तो कन्वर्ट कर पा रहे हैं। आरना इज करेक्ट, अद्विका इज करेक्ट, लेकिन बाकी बच्चे भी बैठ के वेट कर रहे हैं कि मैम कर दें शायद। बेटा देखो ध्यान से, क्या बोला है? अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल। मैंने बोला कभी भी कुछ पर्टिकुलर नहीं बनाना है, तो कुछ ऐसा जिसमें कुछ भी ना हो, तो मैंने बना दिया ये। ठीक है, A B C D opposite sides of this quadrilateral, opposite sides, opposite sides ये वाली ले सकते हैं। Subtend supplementary angles at the center of सर्कल, यही बोल रहा है ना, यानी इन दोनों का सम कितना? 180 डिग्री। ये प्रूफ करना है। मनन ने बिल्कुल सही बनाया था, इधर दो बच्चों ने सही बनाया था, काशू थोड़ी सी लेट बना दिया था, दिखा रही था, चुपचाप पीछे जाकर के बैठा है। इतनी छोटी सी, देख रहे कितनी छोटी सी फिगर है इसकी। बड़ी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया सबको समझ में ही है। अब कैसे करेंगे ये बता दो तो। जब भी इस टाइप का कुछ प्रूफ करना होता है, जैसे वो वाला क्वेश्चन था 9th क्वेश्चन, उसमें वो 90 डिग्री प्रूफ करना था। कुछ क्या किया था हमें सब कुछ याद है? वो पार्ट्स को पहले किया था, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी कर। सोचो, इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को कुछ मार्क कर, क्या कर ले? PQRS डॉटेड ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब ये सारी ट्रायंगल्स कैसे होंगे? दो दो के पेयर्स कैसे होंगे? तो ये एंगल 1, तो ये भी 1, ये एंगल 2, तो ये भी 2, ये एंगल 3, तो ये भी 3, दिस इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4, और पूरे का सम कितना? और सब दो दो बार आ रहे, तो 2 टाइम्स एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 3, 2 टाइम्स एंगल 4 इज इक्वल टू। मैं प्रूव नहीं करूंगी बच्चों, ऐसे ही लिख रही हूँ, सबको समझ में आ गया? तो 1 + 2 + 3 + 4 180। अब देखो ध्यान दो, 1 + 2 किसके इक्वल है? इन दोनों को पेयर कर दो, इन दोनों को पेयर। तो 1 + 2 दिख रहा है ना सबको? एंगल DOC और एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एक्सरसाइज डन है बेटा, आज की ही डेट में जाकर के इसे रिपीट करो। अगर 2-3 दिन का डिफरेंस आ जाएगा ना तो फिर भूल जाओ, आज ही कर ले, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट टाइम इजी हो जाएगा आपको रिवाइज करना। चलो वहीं पे क्लोज। कल 9 बजे टेस्ट देने आ जाना बच्चों। होमवर्क नहीं भेजा है मैंने क्योंकि टेस्ट की तैयारी कर रहे होगे आप लोग, टेस्ट की तैयारी करके आना अच्छे से। ओके बच्चों, बाय। मॉर्निंग में 9 o'clock कोई ऑनलाइन नहीं, सब ऑफलाइन आएंगे मेरे पास। हाँ युवराज, अब बोलो बेटा। स्कूल जरूरी नहीं होना बेटा, तो